In the mid-70s, a man who came to Rajkot in search of livelihood has today become a source of livelihood for 500,000 people. A man hailing from nondescript village in Saurashtra, having attended school till class 10, is today being invited by top B schools to come and share his success story. Meet Chandubhai Veerani, Managing Director of Balaji Wafers Private Limited, the man who has redefined how packaged food business is done in India. He began his journey with his two brothers by selling chips near a small cinema hall in Rajkot. With time, the single-screen theatre downed its shutters due to competition from multiplexes. But the brothers moved on. They have travelled 2 generations with their brand Balaji to become one of the largest makers of potato chips in India. While many other snack food companies could not survive the competition from multinationals, Balaji Wafers has become a household name today, giving multinationals a run for their money. Son of a farmer, Chandubai came to Rajkot in 1974 with some financial support from the family. Fueled by the success of his chips business near the cinema hall, Chandubai decided to turn this to their core business. બીજા પાસે અમે જે માલ લેતા એ રેગ્યુલર સપ્લાયર ન મળતા એમ થયું કે જાતે અમે પ્રોડક્શન શરૂ કરીએ 1982 માં અમે બધા બ્રધરોએ ઘરે પ્રેક્ટિકલ બધું જાતે કરતા કરતા આગળ વધાર્યું. In 1989, the company set up a plant in GIDC's industrial estate in Rajkot. 82 માં લોકો એવું સમજતા કે થાલામાં વેફર મળતી હોય એ ફ્રેશ હોય ને પેક હોય એ વાસી હોય. ધીમે ધીમે અમે સારી ક્વોલિટી અને અવેલેબલી વધારે કરી સર્વિસ દ્વારા. Chandubai's success mantra is to focus into distribution. 10% પ્રોફિટ હોય અને 15% ખર્ચો થતો હોય તો પણ ત્યાં માલ પહોંચાડવો જોઈએ. ત્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મજબૂત થાય છે અને ત્યારે એક નાનામાં નાનો કસબો હોય ને ત્યાં પેકેટ પહોંચે છે, કસ્ટમર જે છે એ સેટિસ્ફાઈ થાય છે. The company has a strong network of 600 dealers in 5 states. The distribution-only model has certainly paid off. The homegrown brand from Gujarat is valued at a whopping 4,000 crore today. And brand Balaji enjoys 60 to 65% share in the wafers and snack market in Western India. The company has an annual business turnover of rupees 1,200 crore and is now spreading its wings to northern and southern markets. The company has 2 major business establishments directly employing 2,200 people. Of this, 70% workforce comprises of women. Balaji Wafers has been doing CSR activity for long, much before CSR became a norm for Indian company. A man of few words, Chandubai truly personifies the indomitable entrepreneurial spirit that is the hallmark of Indian businesses today. तो जर्नी में से आपको जो भी आपको जीवन में फायदामंद है वो आपको अपनाना है. तो थोड़ा सुनना पड़ेगा. मैं सुनाऊंगा नहीं, आपको सुनना पड़ेगा. मेरी जर्नी 1974 जामनगर जिला कालावड़ तालुका का एक धुंधुराजी गांव, स्मॉल गांव पहाड़ों में, और उसी टाइम बारिश हमारे एरिया में वो बहुत कम होती थी. तो हर 3-4 साल में अकाल पड़ता था. 74 का अकाल पड़ा. और उसी टाइम आज के समय में जरूरियात है उतनी जरूरियात नहीं थी. गेहूं, ज्वार और बाजरा और राय से तो काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए. 1 साल का है तो ठीक है, 2 साल का है तो बड़ा अमीर है. हम गरीब तो थे ही नहीं. तो अकाल पड़ने से कुछ नहीं हुआ तो चिंता नहीं चिंतन करके राजकोट आए. वहाँ सिनेमा के अंदर 90 रुपये में नौकरी मिली. मेरे बड़े भाई को 150 रुपया. कैंटीन में हम ये नौकरी मिली और कैंटीन में ये चिप्स बेचते थे, बाकी सारी चीज़ें बेचते थे. तो चिप्स और दालें रेगुलर नहीं मिलती थी.
तो ये 7 साल परेशानी हुई, तो हमने पहली परेशानी अकाल पड़ा तो राजकोट आए, और राजकोट में हमारा गोल क्या था, सेट होना है, पैसा कमाना है ये नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, गांव में सेट होना है, ये ही गोल था। तो एक काम, पूरा काम अच्छी तरह से किया, 1-2 साल तो कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी हमारे सेठ ने। तो वहाँ 7 साल हमने बेचा, तो रेगुलर माल नहीं मिलता था, क्वालिटी माल नहीं मिलता था। तो 81-82 में हमने एक मकान राजकोट में बना लिया, गांव की पूरी पूंजी बेच के, जमीन जायदाद, खेती की जमीन भी बेच दी, और वहाँ मकान बना के, जो चिप्स नहीं मिलती थी इसलिए वो घर में बनाना शुरू किया, चिप्स, दालें, ये सब। और कैंटीन में बेचते बेचते विचार आया कि चलो एक नहीं अनेक जगह के बेचें। तो हमने पहले बाइक लेके बेचा। जब बाइक लेके बेचने जाते हैं तो लोग समझते हैं कोई फेरी आया है तो रख दे, बिकेगा तो पैसा देंगे, नहीं तो नहीं। तो जब पैसा लाने जाते हैं तो इसमें कि डस्ट लग गई है, कस्टमर ने वापस दे दिया है, खुद खा जाते थे। थोड़ा, सारे नहीं थे, 5-10 ही ऐसे थे। लेकिन इसमें से मेरे को सीखने को मिला, ये परेशान किया ने उसमें गुरु ज्ञान मिला। पहले मैं ये समझता था कि दुकानदार हमारे कस्टमर है, ये परेशान किया दुकानदार ने, तभी मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, लोग परेशान करते हैं तो कि क्वालिटी बनानी चाहिए, क्वालिटी बनाना है तो क्या करना चाहिए, कि ऑटोमेटिक करना चाहिए। तो फिर हमने ऑटोमेटिक किया, पैसा नहीं था, पुरानी फॉरेन की मशीनरी लेनी है तो 1-2 करोड़ की मिलती थी, फिर पैसा नहीं था तो 50 लाख की एक पूना की मेसर एंड प्लेट कंपनी ने हमको जगह के मुताबिक और पैसा के मुताबिक प्लांट बना दिया। और हम कोई इंजीनियर नहीं थे, हमारा तो बस मानसिक फ्लो था, कंज्यूमर को क्वालिटी देनी है, क्वालिटी देनी है तो ऑटोमेटिक डालना है, बस एक मानसिक मजबूताई थी, बाकी कुछ नहीं था। तो प्लांट डाल दिया हमने 92 में। 82 से 92 तक हमने तवे में चिप्स बनाई, और 7 साल हमने बाहर से लेके चिप्स बनाई। तो ये प्लांट नहीं चला, और 2 महीने में ये कंपनी बंद हो गई, पूना की मेसर एंड प्लेट कंपनी। पूना के होंगे यहाँ कोई पता होगा। ये 2 महीने हमको सपोर्ट मिला, बाकी सपोर्ट भी नहीं मिला। तो सपोर्ट नहीं मिला तो हम बोले कि अब काम करेंगे, उसकी गलतियां होगी, आप तू मैं करेंगे फैमिली में कि तुमने किया है, तो कोई शॉर्टकट मार देगा, जीवन खत्म हो जाएगा, परेशानी और बढ़ेगी। काम करेंगे, गलती होगी, गलतियां हम ही ये खत्म करेंगे। मैं और मेरा छोटा भाई रोज उठ के कुछ न कुछ जुगाड़ करते करते ये 6 महीने में ये प्लांट शुरू कर दिया हमने, और एक प्रैक्टिकल इंजीनियर बन गए। इससे पहले बाइक से बेचा, फिर रिक्शा लिया, थोड़ा सेल बढ़ा तो 20,000 की लोन लेके, टेम्पो लिया 1,80,000 की लोन लेके, फिर घर छोड़ के इंडस्ट्रीज एरिया में गए 5 लाख की लोन। उसी टाइम पैसा की कीमत ज़्यादा थी, मतलब ज़मीनों सस्ती थी, तो पूरी फैक्ट्री मिल गई 1000 मीटर में। तो वहाँ ये लोन लेते गए, लाख, करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, आगे बढ़ते गए और लोगों को जोड़ते गए, और 2500 करोड़ का आज तक इन्वेस्ट किया। घर से शुरू करके छोटी राजकोट में 2 फैक्ट्री बनाई, बाद में अभी एक वाजड़ी में फैक्ट्री है 50 एकड़ में, एक वलसाड़ में है 50 एकड़ में, एक मध्य प्रदेश में इंदौर में है, और एक यूपी में लखनऊ में है, और एक अभी बेंगलोर में जगह ले ली है, एक फैक्ट्री वहाँ डालेंगे, और एक फैक्ट्री डालते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों को जोड़ते जाएंगे। और जब शुरू किया घर से 5-7 लोग काम करते थे, आज 7,000 लोग खाली हमारी प्रीमाइसिस में काम कर रहे हैं। 5-7 लोग सप्लायर थे, आज 3,000 सप्लायर है। बिल्डिंगे, मशीनरी, पैकिंग छोड़ के सारा कृषि रिलेटेड ही प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैंने काम भी किया है और मेरे ब्लड में भी है आज तक किसानों का।
तो मेरे दादाजी बोलते थे, बेटा किसानों को कितनी समस्या, 4-6 महीना माल पकाएगा और वो बेचने जाएगा, कितना ताप तड़के धूप में काम करके उसका रेट दूसरा तय करता है। और एक मोची जूता बनाता है, उसका रेट वो खुद रेट करता है। तो मेरे को याद था, तो मैं किसानों के पास जाता था कि आपको क्या समस्या है। तो हम वो 35-40 सेमी से छोटा आलू आता है ना, वो नहीं लेते हैं क्योंकि वो स्लाइड में कचरे में पानी में चले जाता है। तो वो प्रॉब्लम था। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने एक प्लांट आणंद में डाला, स्मॉल पोटैटो। फिर भी थोड़ा बचता था तो एक प्लांट लुधियाना में, पंजाब में डाला। फिर एक प्लांट अभी इंदौर में शुरू हो जाएगा 1-2 महीने में। तो पूरे इंडिया में जो समस्या किसानों की थी स्मॉल आलू की, तो खत्म कर दी। तो फिर वो देसी आलू लंबे टाइम तक टिकता नहीं था। तो फिर मैं पूछता था कि ये क्या है, तो कि लंबे टाइम तक टिकता नहीं है, कोल्ड स्टोरेज में बिगड़ जाता है। तो एक हॉलैंड का लेडी रोजेटा नाम का, उसी टाइम, आज तो काफी आलू आ गए हैं, रेड चमड़ी का आलू लाए, लंबे टाइम तक टिकता है। आज गुजरात में जो किसान पूरे इंडिया में है, वो नंबर 1 किसान है ताकत में, पैसों में। तो वो एक ग्रुप है हिम्मतनगर के पास, वो 100 करोड़ का आलू देते हैं। छोटा ग्रुप 50 करोड़, 25 करोड़, करोड़ के आलू देते हैं। वो खुद के हार्वेस्टर, बोने के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, 30-30 करोड़ का स्टोर है। तो बात यह है कि हम सबको मजबूत करके अच्छी जो रॉ मटेरियल आती है, अच्छी मशीनरी में प्रोसेस होते हैं। तो 10 बड़े सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इसमें से एक सोनिया है, शायद जानते होंगे आप, यहाँ बैठी आगे, वो भी एक बड़ी सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। मैंने अभी पूछा साल का कितना टर्नओवर करती है, 250 करोड़ का कर रही हूँ। तो कितने साल से जुड़ी हैं आप? 6 साल। पहले कितना था एक साल का? 1 करोड़ का सेल था। और टारगेट देते हैं आपको, सेल का लेटर आता है। देखो वो नेचुरल ग्रोथ हुआ। ऐसे 10 सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और खुद के ट्रक है, सबका मिला के 600-700 ट्रक है। वो सबको डिलीवरी करते हैं 25 से ज़्यादा राज्यों में। और वहाँ लगभग 2000 डीलर हैं, उसको डिलीवरी करते हैं। और 2000 डीलर है, छोटा डीलर है उसके 5 रिक्शा है, बड़ा डीलर है उसका 100 रिक्शा है। वो उसके एरिया में डिलीवरी करता है। वो किसको? 50 लाख दुकानों में। और वहाँ से तुम्हारे जैसे कंज्यूमर परचेस करते हैं। तो एक गांव का बंदा, ना पैसा है ना एजुकेशन है, एक मानसिक मजबूताई के आधार पे, एक पुरखों के संस्कार से, कि मेरे दादाजी बोलते हैं कि बेटा दूसरे की भलाई में तेरी भलाई है। बेटा एक इंसान ऐसा, एक 84 लाख जीवों में से एक ऐसा जीव है, अच्छा जीव, ये कुछ भी कर सकता है। एक जीव मात्र को दया रखते हैं और मानव मात्र को कर्म करते रहे और सिखाते रहे, और एक मरने के बाद भी उसका नाम रहे, ऐसा काम हमको करना है। उसको बोलते हैं इंसान। लेकिन बोलते थे कि इंसान को बोलना पड़ता है कि इंसान बन। तो मैंने इंसान बनने की कोशिश की। तो एक मेरे ऊपर इंसानियत के नाते विश्वास किया। एक छोटा वर्कर है, वो भी मेरे से बात कर सकता है। एक सप्लायर है, वो भी बात कर सकता है। एक कोई भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ने का काम किया। ना हमने किसी को टारगेट दिया, ना
कोई स्कीमें दी कि नहीं कोई सेल की बातें की। हमने यही बोला कि हमको एक छोटे से छोटा कंज्यूमर है उसको अच्छा पैकिंग देना है, उसकी खा सके इतना, उसको फेंकना ना पड़े, अगर रह जाए पैकेट तो फेंकना ना पड़े, 6 महीने 12 महीने तक बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसी क्वालिटी देनी है। और जितना नाश्ता की तरह हमको देना है, छोटा पैकेट भी देना है और फैमिली के लिए। तो एक 50 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे हमने पूरा एक ठहर के तब के एक ज्ञान समझ आई, ज्ञान से तो समझ है हमको एक कंज्यूमर को क्या खाना है। कम से कम ऑयल कर दिया हमारी प्रोडक्ट में, कम से कम मसाला कर दिया तो खर्चा भी कम हो गया और कंज्यूमर का हेल्थ भी अच्छी हो गई क्योंकि ऑयल भी कम है, मसाला भी कम है। तो एक कंज्यूमर के आधार पे बीच में लाखों करोड़ों लोगों के जोड़ने का काम किया। वो कौन कर सकते हैं? कि इंसान। बाकी बिजनेसमैन होते हैं प्रोफेशनल, वो क्या करते हैं? टारगेट देते हैं, वो लेटर भेजते हैं। तो मैं पूछता हूं डीलरों को तो त्रास पड़ता है। तो हमने एक इंसान बन के जोड़ने का काम किया। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई बिजनेस की प्रोसेस फोर्स किया। हमने तो एक नारायण नारायण करते गए, लक्ष्मी अपने आप आती गई। और प्रोफेशनल लोगों को सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी नहीं मिलेगी, डंडे लेके घूमेंगे। तो हमने तो नारायण नारायण किया, लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी आई, इसलिए हमको ज़्यादा सेल की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने किसी को फोर्स नहीं किया। हमने क्या किया? सेटिस्फाई किया। एक सप्लायर है उसको सुना, एक वर्कर है उसको सुना, और हमने परेशानी उठाई। परेशानी में क्या हुआ? सीखा हमने। जीवन में निष्फलता सफलता सुख दुख वो पार्ट पार्ट से बना हुआ जीवन है। जिसके जीवन में ये पार्ट नहीं है ना, तो जीवन अधूरा रह जाता है, लास्ट में वो फंस जाते हैं। हम तो क्या हो, फंसते फंसते निकलते निकलते एक मजबूत होते गए और लोगों को जोड़ते गए। इसीलिए आज बिना टारगेट राजकोट में बहुत पुराना बिजनेसमैन है, तो उससे भी ज़्यादा टैक्स पेयर हम 7 साल से हैं। पूरे गुजरात में स्नैक्स नमकीन में टैक्स पेयर नंबर 1 है, और पूरे इंडिया में बालाजी नंबर 1 ग्रोथ से चल रही है। तो ये तरीका किसी के पास नहीं है जो मैं काम करता हूँ, ये तरीका एक इंसानियत का किसी के पास नहीं है। लेकिन अभी वो कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन वो कॉपी हो जाती है, आधा अधूरा ज्ञान ऐसा हो जाता है। मेरे तो ये 50 साल में मैंने जो मेरे दादाजी ने बोला था कि दूसरे की भलाई में तेरी भलाई है, तब मैंने ऐसा सोचा कि दादाजी का दिमाग अब खराब हो गया है। लेकिन आज पता चला कि कुछ बुजुर्गों का शब्द होता है वो अच्छा होता है, वो सुनने लायक होता है, उतारने लायक होता है, ज्ञान होता है उसमें। क्योंकि मेरे पास ना किताब का ज्ञान था, ना मेरे पास पैसा था, तो मेरे पास एक गांव की मजबूताई थी, गांव का एक मानसिक मजबूताई थी। क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते कहीं दफ्तर लेके नदियों में चले जाते थे, पेड़ों में चढ़ जाते थे, तो मानसिक मजबूत हो गई। क्योंकि कुदरत के साथ हम रहें, तो कुदरत के साथ जो रहेंगे, जो कष्ट उठाएंगे, वो मजबूत होते हैं। तो इसी तरह हम मजबूत बनते गए। क्योंकि निष्फलता सफलता आती है तब हम दिमाग में बढ़ई बना देते हैं, या सफलता मिलती है तो भी मालिया जैसे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम स्थिर रहेंगे। सफलता भी मुसीबत है और निष्फलता भी मुसीबत है, उसको स्थिर रह के एक जीवन स्थिर रहिए। जैसे भगवान हमको जिंदा रखे उसी तरह हमको रहना है, सुख में भी खुश रहना है, दुख में भी। जीता हूँ, पिछले का भूल जाता हूँ, आगे का बहुत सोचता नहीं हूँ। लेकिन नहीं सोचता हूँ तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने सोचा और वो काम कर रहे हैं, इसलिए आज बालाजी नंबर 1 ग्रोथ से चल रही है।
ये तो मैं बोलता रहूँगा तो आप सुनते रहेंगे, लेकिन आपको अभी कोई क्वेश्चन है तो उसकी जगह थोड़ी रखूँगा और आप मेरे को पूछ सकते हैं बिजनेस के रिलेशन और जीवन के रिलेशन या फैमिली के रिलेशन, क्योंकि काफ़ी मैंने फैमिली को मजबूत करने के लिए काफ़ी लेट गो किया है, तभी एक बेज बना। बाद में सभी धर्म को, मानव जात को जोड़ के एक बालाजी का प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल सभी धर्म को जोड़ के एक पूरे इंडिया में नंबर 1 ताकत वाला एक ब्रांड बना दिया। 10-20 साल के बाद, अभी मेरा 3रा नंबर है, आप 10-20 साल जाने दो, अपने आप ये नेचुरल ग्रोथ से जा रहा है, आगे हो जाएगा। इसका मतलब है एक इंसान बन के हमको मरने के बाद जिंदा रहना है, हमको संगठन की ताकत बनानी है। ये संगठन, ये संगठित लोग हैं, ये ताकत है, वो काम कर रहे हैं। इसीलिए आज ये जो इसमें बहुत पुरानी सीडी है, आज 6,000 करोड़ का पिछले साल हमारा बिजनेस था, और 5-5 रुपये में इतना बड़ा बिजनेस करना, वो एक हनुमान जी की फौज ही कर सकते हैं। तो बालाजी मतलब हनुमान जी, तो हमारे पास बड़ी फौज है और अपनी जिम्मेदारी से वो काम कर रहे हैं। हम उसको चाबी टाइट नहीं कर रहे हैं, खिलौना नहीं है, हमारे पास सभी इंसान है। तो ये मेरी वाणी ख़त्म करता हूँ, और आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके जवाब देने के लिए रेडी हूँ। है किसी को? माइक है? मेरे को 45 मिनट दिया था। हाँ, नहीं, यहाँ वीआईपी कोई है नहीं, सब हमारे हैं। सर थैंक यू जो आपने हाँ, वीआईपी में सभी नहीं आ सकते। थैंक यू वेरी मच जो आपका अमेजिंग स्टोरी आपने हमें बताया, हाँ, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मेरा एक क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन मैंने आपसे जानना चाहता हूँ, बालाजी एक ब्रांड थोड़े टाइम के लिए बहुत छोटा था और ग्रो करते गया, तो जैसे लेज, हल्दीराम, ये जो एस्टेब्लिश ब्रांड थे, इनके साथ जब आप कंपटीशन किया तो उनको आपने कैसे ओवरकम किया, ये आप हमें बताइए। थैंक यू। देखो, पेप्सी वाला आलू लेने नहीं गया है, मैं आलू लेने गया हूँ, किसानों के खेत में गया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो उसकी समस्या मैंने सुनी, तो उसका और मेरा बॉन्डिंग बढ़ गया। आप हिम्मतनगर के आसपास जाइए, पेप्सी को आदमी घूमता है, मेरा आदमी कोई घूमता नहीं है, मेरे को आलू देने आते हैं सब। ये विश्वास की कड़ी है। और दूसरी बात है, हम इंडियन है, हम एक इंडियन मतलब देसी आदमी है, दिल से बात करते हैं। आप जहां हैं, एक काम कीजिए, एक बालाजी का डीलर को मिलिए और पूछिए। आप चंदू भाई से डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और पेप्सी वालों को पूछिए, आप मार्केटिंग मैनेजर को फोन कर सकते हैं। क्यों? वो छोटा समझते हैं, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। अभी क्या बोला मैंने? ठीक है, वीआईपी में क्वेश्चन करेंगे, वीआईपी में कौन आएगा? 10 बड़े लोग आएंगे, छोटे लोग तो रह जाएंगे। तो आप छोटे छोटे लोग थोड़ा क्वेश्चन कीजिए, बाकी वीआईपी में बाद में करेंगे। मैंने इसे जवाब दे दिया। तो हम दिल से बात करते हैं, और हमारे पास नई जनरेशन है, तो दिमाग से भी बात करती है। तो हमारे पास 2 ताकत है, एक चिप्स, एक वेस्टर्न प्रोडक्ट और देसी नमकीन। तो कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है कि 2 ताकत है? तो 2 ताकत कैसे बनती है? हम प्रैक्टिकल, हमारी नेक्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल, दोनों हम यूज कर सकते हैं, दिमाग और दिल। હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ। તમે આવ્યા એના માટે તમારો આભાર માનું છું। અને मेरा सवाल है सर कि आप इतने अच्छे तरीके से अपनी इंडस्ट्री, अपना कॉरपोरेट चला रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं बालाजी वेपर्स प्राइवेट लिमिटेड अभी तक लिमिटेड क्यों नहीं हुआ है? आपका कोई आईपीओ में कॉरपोरेट के बिग टाइकून बनने का ऐसा कोई है प्लान? देखो, राजकोट में रह रहे हैं, वहाँ कोई क्लब नहीं है, कोई पैसा यूज करने का तरीका नहीं है,
तो पैसा बहुत बचता है। तो इतना अभी पैसा है मेरे पास। मेरा तो ठीक, मेरे बच्चे भी कहाँ यूज करे, तो पैसा हमारे पास बहुत है, तो वो कहाँ डालूं? फिर आईपीओ में, मतलब वो अभी बोलते ये डीके सुराना, ठीक है चंदू भाई, मैं आपको 40,000 करोड़ की वैल्यू देके आप थोड़ा दे दीजिए, 4-5 हजार करोड़ दे दूंगा। तो क्या करेंगे? अभी पड़ा है उसका, तो बताओ क्या करूं मैं। लेकिन दूसरे तुम्हारे जैसे ने बोला आप कमाते हो तो हम भी थोड़ा कमाए, तो मैंने बच्चों को बोला है 3-4 साल में आएगा, तो आप बोलना अगर जरूरत है तो मैं हेल्प करूंगा। और दूसरी बात, आभार आपका नहीं, आभार पहले मैं सोनिया जी को बोलूंगा कि आप और हमारा कनेक्शन कर दिया और मेरे का थोड़ी हाइट इंसानियत में बढ़ा दी। आप सबके साथ नाम तो मेरा जुड़ जाएगा, तो ये सोनिया जी ने जोड़ा है, तो आभार उसका मानो। और हम तो जुड़ना चाहते हैं सबसे, और लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो हम आईपीओ बच्चों को बोल दिया, थोड़ा टाइम लगेगा। बोलिए, थोड़ा आगे आ जाइए ना। हाँ जी। नहीं तो मैं आ जाऊं। हाँ सर, अभी आपने मेरे बताया था कि टफ टाइम के जब था आपका, तो आपने एक फैमिली मैनेजमेंट के लिए कुछ। सर मैं इधर से बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। हाँ जी। आपने सर टफ टाइम जब आपका रहा बिजनेस का, तो आपने फैमिली मैनेजमेंट कैसे करें उस टाइम पर, उसके बारे में थोड़ा सा। टाइम तुमको भी इतना मिलता है, मेरे को भी इतना मिलता है, और टाटा रिलायंस को भी मिलता है। हम बिजी करते इजी नहीं हो जाते, हम इजी हैं। कोई भी बंदा मेरे को बोल दे पैदा होगा कि चंदू भाई टाइम नहीं दिया, टाइम सेट करो। मैंने कभी 2 घंटा नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा भी मैं लेट खाना नहीं खाया आज तक। जहां है वहां जियो। मैं अभी आपके साथ ही जीना चाहता हूं, लेकिन जो मैनेजमेंट वाला जल्दी खत्म करना चाहता है। मैं सारी चीजें भूल गया, 4 दिन से यहां हूं। आज आपके लिए रुका। मैं कहीं 4 दिन रुकता ही नहीं हूं, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। फिर अजी सोनिया बोलती कल जाओ, रात तक रुको, सबको जवाब दो। मैंने कहा नहीं, अभी तो निकल जाऊंगा। तो हम जीना सीखे। हम घर जाते हैं तो घर जीते हूं, फैक्ट्री भूल जाता हूं। अब यहां हूं तो फैक्ट्री और घर दोनों भूल गया हूं। और फिर फॉरेन जाऊंगा, सारी चीज, एक फोन मेरे पे नहीं आएगा कभी। तो हम जीना सीखे। तो टाइम तो टाइम ही है, मेरे लिए टाइम ही है। तुमने डेट मांगी, मैंने कभी चेंज की? पूछ लो सोनिया ने, तुम्हारी डेट पे आ गया मैं। वो 2-3 दिन यहाँ गोरेगांव में एग्जीबिशन था, तो सेट हो गया। तो टाइम सेट हो जाता है। करने की मानसिकता रखो, और थोड़ा काम करते करते करने दो दूसरों को। मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने जिंदगी में चाय मेरी घर पे या फैक्ट्री पे मंगवाई नहीं, लेकिन टाइम से 1 मिनट पहले आ जाती है, क्योंकि जिम्मेदारी मैंने दे दी उसको। हम क्या बोलते हैं, चाय लेकर आ, ये ज्यादा शुगर है, कम शुगर है, फीकी है। मैं बोलता हूं देख, वो चाय पकाते हैं ना, वो खड़ी रहे वहां, मैं उसको डांटता नहीं हूं, तो ज्यादा सीख जाती है। तो सारे लोगों ने जिम्मेदारी ले ली, तो टाइम बच गया सारा। जय श्री कृष्ण। जिम्मेदारी देना सीखो। सर जय श्री कृष्ण। हाँ बोलिए। सर मैं राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1 साल जॉब किया हूँ, और आपकी बातों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं पवन बंग आर्किटेक्ट हूँ। सर आपने जो कहा वो, सर जैसा आप शुरुआत में जैसे आपको तकलीफ आ रही थी कि आप जब कलेक्शन के लिए जाते थे तो आपको दिक्कत जाती थी, पैसे नहीं देते थे लोग, तो आपने कहा कि आपने क्वालिटी को इम्प्रूव किया। पर उस समय पैसे की भी किल्लत रहती है और रिसोर्सेस की भी, तो आपने वो हौसला कैसे जमा किया कि मैं क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे करके प्रोडक्ट को आगे लेकर जाऊं? देखो, पैसा एक तो डेबिट में डूब जाता था, डेबिट देना पड़ता था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसीलिए ये सारे समस्या था ना। तो इसलिए वो प्लांट डाला ऑटोमेटिकली, फिर भी इसमें फंस गया, तो उसमें भी निकल के मैं प्रैक्टिकल इंजीनियर बन गया ना। तो
देखो कोई भी मुसीबत आती है हमारा जीवन पक्का करने के लिए आती है, तो एक पूरा गेम मानसिकता का है, इसमें हमारी मानसिकता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मानसिकता थी कि हम करेंगे, कर सकेंगे। तो ये पूरा जीवन का गेम, सुखी होना दुखी होना, ये मानसिक आधार है, समझ गए। मानसिक गेम की ताकत से हम बन गए। फिर तो क्या है, एक सपोर्ट मिलता है। आज पूरी इंडिया से पूरे 35-40 देशों से सपोर्ट मिल रहा है। 25 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट मशीनरी कर रहे हैं। तो सारा यहाँ रिस्पेक्ट से हमको अच्छा रेट देते हैं, अच्छी मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, नहीं चलती है तो वापस भी ले जाते हैं। तो ये सारा सपोर्ट बन जाता है, एक नाम बनना चाहिए, एक विश्वास पात्र ब्रांड होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण चंदू भाई जी। I'm sorry to interrupt. This बंद will be करना? the last question. लास्ट क्वेश्चन Yes, बोल रहे yes. हैं। हाँ, सर क्योंकि यहाँ तुमको और हमको समय है, बाकी नहीं है, बाकी को समय जय समय श्री की कृष्ण, अभाव है। श्री चंदू भाई जी बोलिए, आपने, बोलिए। है कोई? मैं MIG पुणे से हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा कि आपको एक आइडिया आया था कि वेस्टर्न वर्ल्ड से एक प्रोडक्ट लिया है और उसे इंडियन मार्केट में लाना है। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप देख रहे हैं कि मार्केट सैचुरेट हो चुका है या अभी भी स्कोप है, या वो चीज़ मैटर नहीं करती है कि चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो आप अपना जी जान लगा के काम करो तो हो जाएगा? देखो, आपने जो क्वेश्चन किया वो चाय पे मैंने एग्जांपल दिया। अभी 15 साल पहले मेरे बेटे के ऊपर छोड़ते छोड़ते पूरा छोड़ दिया है, और उसने भी आज R&D टीम वालों के ऊपर छोड़ दिया। एक टीम बन गई है, हमारे 20 डिपार्टमेंट है, वो काम कर रहा है। और डिपार्टमेंट के साथ अगर उसको जरूरत है तो वो कभी कभी एक आध महीने में दो बार आते हैं कि सर जी वो टेस्ट कीजिए ना, ये प्रोडक्ट कैसी है। तो मेरा काम नहीं है बिजनेस करना, बिजनेस हमारे बच्चे कर रहे हैं, और इसके नीचे एक प्रोफेशनल प्रैक्टिकल टीम है, वो कर रही है, तो वो करती रहेगी। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको लग रहा है ये आगे हमारी जाके? नहीं, ये हमारी R&D टीम वाला करता है ना। ओके पहले हम 5 प्रोडक्ट बना रहे थे, आज 50 बना रहे हैं। वो उसकी जिम्मेदारी है। जैसे चाय वाली मेरे को चाय दे देती है, लड़का है लड़की है, उसी तरह नई नई प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। हम कितना कर सकते हैं? हम एक अकेला आदमी खा पी के आनंद कर सकता है, एक फौज काम करेगी तभी होगा। तो एक टीम है, कर रही है। आप मेरे को कल परसों फोन कीजिए तो मैं टीम वालों को पूछूंगा कि आप कौन सी नई प्रोडक्ट, और आपके पास है तो दे सकते हैं, हमारी टीम को बता दे दूंगा। ठीक है। अब किसी को मिलना है, क्वेश्चन करना है तो बाहर निकल के करोगे, अब यहाँ टाइम नहीं है। थैंक यू, आभार। सर एक सेकेंड, आप ऑडियंस मेंबर्स में जिनको भी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो इसी ऑडिटोरियम के पीछे ऑरम हॉल में VIP लाउंज में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई एम श्योर सर विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प अस विद आवर क्वेरीज। I would like to thank you so much, sir, कि आज आपने हम सबको प्रोत्साहन दिया, प्रेरणा दिया, एंड सही मायने में सीखने मिलता है इनसे कि कैसे आप सकारात्मक रह सकते हैं, कैसे आप अगर सही राह पे चले तो सक्सेस हमेशा आपको मिलनी है, और आप उसका जीता जागता प्रूफ है सर। थैंक यू सो मच। मैं निवेदन करती हूँ श्री शरद जी सोनी एंड श्री पुष्पक जी लड्डा से कि वे यहाँ आए और सर का फेलिसिटेशन करें और उनको ऑनर करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ सर को हम बताएं। ये हमारा प्रोडक्ट बनाने का मेरा काम नहीं है, मेरा काम है इंसान बनाने का। मैंने एक ऑडिटोरियम बनाया फैक्ट्री में, मेरे बेटे को बोला मेरी ऑफिस छोटी कर दे, मेरे को एक ऑडिटोरियम बना दे। यहाँ से SP जैन वाला हर 6 महीने में 2 बार आता है, आप भी आइए, वहाँ टाइम ही है। एक ऑडिटोरियम, इससे भी अच्छा ऑडिटोरियम बनाया है मैंने, इससे कई गुना अच्छा। आइए राजकोट, मेरा काम ही है, मेरे को और बड़ा इंसान बनना है। बहुत अच्छा लगा।
you.